friends, I once again welcome you all on my YouTube channel, and in today's video we will see the next topic in the ionic equilibrium. Okay, so up till now in the ionic equilibrium we have studied about the introductory part, in which we have seen the different definitions given by the different scientists for acids and the bases. Also we have seen about the dissociation constant, chemical equilibrium, what is chemical equilibrium. Also we have seen about the auto-ionization of the water, and some numericals were seen on pH and pOH and the relationship between pH and pOH. Okay, so now today we are going to move further in ionic equilibrium, and today we are going to see about the next topic, that is hydrolysis of the salt. This is a very important and very interesting topic. Okay, so let's move to the today's topic, that is hydrolysis of the salt. So today we are going to see about the hydrolysis of the salt. So before moving to the main hydrolysis, first let me ask you something, that what do you know about the salt? You all have studied in your lower classes that how the salt is formed. So how have you studied how the salt is formed? Yes, we all have studied that the salt is formed when the acid reacts with the base. When acid reacts with the base, it forms the salt and water. So we have studied the reaction like this, that acids react with bases to form salt and water. Okay, so salt and water. Now this is the salt that is formed by the acids and the bases. Now generally we use the word salt for our common salt, that is NaCl, but it is not that only NaCl is the salt. All the inorganic compounds that form a molecule and combine with each other, they are called as the salt. Okay, so all the inorganic compounds that are forming the salt, they are formed by the reaction of acid and the base. And in the last video we have seen what are acids and the bases. We all know what are acids and what are bases. Okay, we have seen the different definitions of acid and bases according to the Arrhenius theory, Lowry-Bronsted theory, Lewis theory. Let us revise. According to the Arrhenius theory, the proton donors are the acids and hydroxyl group donors are the bases. Whereas according to the Lowry-Bronsted theory, proton donors are acid and proton acceptors are base. Whereas in case of Lewis theory, what happens? The electron donors are the base and the electron acceptors are the acids. So all these we have studied, and also we know that these acids and bases are categorized into two types. We all have studied this, that the acids are of two types and also bases are also of two types. What are their types? Yes. So acids are of two types, that is the acid may be a strong acid or a weak acid. Similarly, the bases may be the strong base or a weak base. Okay, so we all have studied that these acids can be categorized into these two types. Now, whenever any acid out of these two acids, whenever any acid combined with any base, it will form salt and water. So if I see the permutation combinations, then we can categorize the salt, we can make the salt in 4 different ways. Yes, how can we make the salt? First, if I react this strong acid with strong base, I will get type 1 type of salt. Okay, first type of salt I can get by reacting the strong acid with the strong base. Similarly, if I react this strong acid with the weak base, then I get the second type of salt, means type 2 type of salt, means strong acid reacting with a weak base. Similarly, if I react weak acid, this is my acid, so this is weak acid, this is strong acid, this is strong base, and this is weak base. Okay, so if I react weak acid with the strong base, then it may become the type 3, third type of the salt.
And also if I react weak acid with the weak base, then I may get the fourth type of salt, that is my type 4. So in this way I can get 4 types of salt. So the types of the salt can be categorized into 4 different ways. If I first type 1 will be when the strong acid reacts with strong base. First type is strong acid react with strong base. This is one type of the salt, type 1 salt. Then type 2 salt will be when strong acid reacts with weak base. Strong acid reacts with weak base. This forms the second type. Then third type is, which is known as the type 3 salt, in which now we will take weak acid. So weak acid and strong base will form the third type of salt, and fourth will be type 4 salt will be weak acid reacting with weak base. So in this way the salts can be categorized into 4 different types depending upon which acid and which base are reacting together to form the salt and water. Okay. So these are the different types. So let us see each type in detail, and also let us see how they are formed, which type of acid forms the strong acid. For type 1 salt, which acids and the bases forms the type 2 salt, and so on. Okay. So let us move to the first type. So first type is the type of salt of strong acid and strong base. Means the salt that is formed from strong acid and strong base, that forms the type 1 salt. So let us see the example in it. So the example of this salt is, examples are NaCl, second is Na2SO4, then third type is NaNO3, and fourth is KCl, fifth is KNO3, and so on. There are many examples of this type of salt of strong acid and strong base. So in this case, first example is of NaCl. So this NaCl is formed from the salt. This is a salt NaCl which is formed from the strong acid and strong base. So let us see what is the which strong acid and which strong base. Now in this case, this is, if we split this NaCl, it will split out into Na plus and Cl minus. Yes. And we know that this, whenever an acid, we have just seen that the acid reacts with base to form salt and water. Okay. Means this salt plus water forms the acid and the base. So this salt plus water, and the water splits out as HOH. So in this case, hydrogen H plus and OH minus. Okay. So if I combine this, if I form the acid and the bases from this salt, then this positive will get attracted toward the negative. Means the base is NaOH. Yes. And the acid is HCl. So this HCl is a strong acid and NaOH is a strong base. So this salt of strong acid and strong base is formed by reacting NaOH with HCl. So NaOH reacts with HCl to form NaCl, which is a salt of strong acid and strong base. Similarly, Na2SO4. This is also formed by reacting H2SO4. This is a strong acid. H2SO4 and NaOH. NaOH. So this is again a salt of strong acid and strong base. Why? Because in this case the acid is H2SO4, which is a strong acid, and base is NaOH. We have already seen in the last video about the different which acids and which bases are the strong acids and the strong bases, and which are acting as a weak acid and weak bases. Okay. So those who have not watched my previous video, please do watch it. I will put the link in the description box, so you can refer to the previous video, so that you will find it easy to understand which are the strong acids and the strong bases. Okay.
Now next is NaNO3. This is also again a strong acid and strong base combination. Why? Because this NO3 is obtained from the acid HNO3 and Na is obtained from again the base NaOH. So this will combine to form NaNO3. Then KCl. This is also a salt of strong acid and strong base formed by reacting the acid HCl plus the strong base potassium hydroxide KOH. And the last is KNO3, which is again a combination of salt of strong acid and strong base. Why? Because this is formed by the strong acid HNO3 and KOH, strong base KOH. So these are the different examples. You can also find whenever any salt is given, you will automatically know by seeing the salt that what from which type of acid or the base it is from. Just break that salt into positive and negative entity and then try to combine it with H and OH. So जैसे ही आप इसको कंबाइन करोगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव सर, जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपने सॉल्ट लिया है, जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है, उसको पहले आपको दो पार्ट में ब्रेक करते आना चाहिए. कौन सी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, कौन सी नेगेटिव, ये आप सब जानते हैं, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो बस आपको उसको ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद उसको इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करना है. और कोशिश करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये HCl, मतलब यहाँ पर एसिड कौन सा है, HCl. अब HCl का नेचर आप लोग जानते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. फिर आपको कंबाइन करना है पॉजिटिव एंटिटी को OH के साथ, तो ये बन गया NaOH. NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्ट बना, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, तो सेकेंड, लेट अस मूव ऑन द सेकेंड टाइप. टाइप 2 हम लोगों ने क्या देखा था, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विथ वीक बेस इट अगेंस्ट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. तो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप. एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप, सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल है हमारा अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड, अब ये अमोनियम क्लोराइड के लिए भी हमको वही करना है कि अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में से बना हुआ है. कैसे बना हुआ है ये देखते हैं. अगेन मैंने क्या बोला है कि जो भी सॉल्ट आपको दिया है उसको पहले आपको ब्रेक करना है पॉजिटिव और निगेटिव एंटिटी में. तो अब इसमें पॉजिटिव हो गया हमारा NH4 प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एंड इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब हमें इसे किसके साथ कंबाइन करना है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो क्या बन जाएगा, दिस नेगेटिव विल गो टू द पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो हो गया हमारा HCl, बिकॉज एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, तो इसने प्रोटॉन दे दिया है इसलिए ये एसिड कहला रहा है. ओके, सो ये जो प्रोटॉन दिया है उसको प्रोटॉन को फिलहाल इसके साथ ही देख देते हैं ताकि हम पता चले कि कौन सा एसिड हम यूज कर रहे हैं. सो HCl बन गया और ये OH को मैं NH4 के साथ कंबाइन कर लूंगी, मतलब ये हो गया NH4OH, मतलब बेस हो गया मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस. कैसा बेस है ये, वीक बेस. एंड एसिड हो गया हमारा HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो या सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड. सो ये बन गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जाम्पल. ये हो गया एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज CuSO4 कॉपर सल्फेट. नाउ दिस कॉपर सल्फेट ये किससे बना हुआ है, SO4 मैंने बताया था, दिस इज अ, इसमें SO4 2 माइनस, Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा नेगेटिव के पास. मतलब ये कौन से, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 नेगेटिव है मतलब 2 पॉजिटिव, तो 2 हाइड्रोजन एंड SO4. तो कौन सा एसिड बन गया हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड. अब हमने 2 H प्लस लगाए हैं तो 2 OH माइनस लगाएंगे, सो CuOH ट्वाइस. ये हो गया हमारा बेस. सो अगेन वी नो दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉपर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. तो ये जो हमारा सॉल्ट है वो कैसा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ओके, नाउ लेट अस सी थर्ड एग्जांपल, अमोनियम नाइट्रेट. ओके, अमोनियम नाइट्रेट. अब अमोनियम नाइट्रेट पे भी फिर से हम ब्रेक करते हैं. कैसे ब्रेक हो जाएगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस, निगेटिव के साथ जाएगा हाइड्रोजन, मतलब हमारा बन गया HNO3. एक ही नेगेटिव है तो हमने एक प्रोटॉन लगा दिया, HNO3, मतलब ये हमारा एसिड का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया. एसिड मींस HNO3. सो अगेन दिस नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
base will be NH4OH, means the weak base. Okay, so this is your weak base and strong acid. So the salt ammonium nitrate is an example of salt of strong acid and weak base. Now one more example, cuprous chloride. Now if I break this will break out into Cu2 plus and Cl minus. Okay, अब यहाँ पे दो क्लोरीन है, so I have to add 2 hydrogen, so twice HCl, 2 HCl means एक H plus लगा दिया and CuOH by 2. Okay, so this is again cupric hydroxide, which is a weak base, and hydrochloric acid is a strong acid. So this example is again an example of strong acid and weak base. Okay, so this is your second type of salt, salt of strong acid and weak base. Now let us move to the third type, that is the salt of weak acid and strong base. Okay, some of the examples of this type also. So the first example is of sodium acetate, CH3COONA. Okay, again first step, in order to know which weak acid and which strong base are combining together to form this salt, just break this into positive and negative entity, CH3COO minus and Na plus. इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, निगेटिव के पास हाइड्रोजन, पॉजिटिव के बाद OH. अगर मैं निगेटिव के पास हाइड्रोजन लेके जाती हूँ, मतलब ये एसिड कौन सा बन गया, CH3COOH, means the acetic acid, and we know that acetic acid is a weak acid. तो ये जो है हमारा वो है weak acid, प्लस Na के पास आ गया OH, मतलब हमारा जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, and we know that sodium hydroxide is a strong base. So this example, sodium acetate, is an example of weak acid and strong base. Okay, now one more example, KCN. Okay, KCN, again if we break this it will form K plus and Cn minus. Hydrogen will go to the negative entity, means it will form hydrogen cyanide and KOH. Again this is a weak acid, hydrogen cyanide is a weak acid, and this is a strong base, KOH. जो हमने देखा अभी KOH क्या है, strong base. So this is an example of strong base and weak acid. Okay, let us move to the third example, and that is Na2CO3. Na2CO3, this is formed by, now in this case this will become Na plus and CO3 2 minus. Okay, so in this case Na plus means plus के साथ क्या जाएगा, OH, means again here the base is NaOH, means the strong base, and carbonic acid H2CO3 is your weak acid. तो ये बन गया हमारा weak acid और ये बन गया हमारा strong base. अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, Na के ऊपर एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब ये Na पॉजिटिव, बट यहाँ पे कितने हैं, 2 है, मतलब मुझे यहाँ पे 2 OH लगाया मैंने, सो इट हैड बिकम 2 NaOH, और ये 2 OH लगाए मतलब 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे. तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड किए, बिकॉज in order to balance this charge, this is 2 minus, so I have to add 2 plus, so 2 hydrogen H2CO3, this is nothing but the carbonic acid, and which is a weak acid. Okay, so this has become the third type, that is the type of weak acid and strong base. Okay, now we have to see now the last type, that is the type of weak acid and weak base. This type is very important, as we have to study the dissociation for weak acid, and we have already studied about the dissociation constant for weak acid, for weak base. Ka की वैल्यू देखी थी हमने, Kb की वैल्यू देखी थी, और Ka और Kb की वैल्यू से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. तो ये सब चीजें हम यूज करके अब क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक जो है हमारा, लास्ट सॉल्ट, नॉट लास्ट टॉपिक, लास्ट सॉल्ट जो है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस पढ़ेंगे. ओके, we are going to see the type 4, that is the salt of weak acid and weak base. Let us see some examples of this type also, that is the salt that is formed by combining weak acid with weak base. Okay, so the first example is of ammonium acetate.
The first example that we are going to, there are many examples, but we will see some 1 or 2 examples. So now this is ammonium acetate. Now from which acid and which base this is formed? Just break out this one. It will break out into CH3COO minus and NH4 plus. Okay. Now hydrogen and OH. So hydrogen will go to the negative side and OH will go to the positive side. Therefore, the acid and the base from which these are formed is CH3COOH is your acid and NH4OH is your base. Okay. So this is again a weak base and this is also a weak acid. Acetic acid is a weak acid and ammonium hydroxide is also a weak base. So this is a salt formed from the weak acid and weak base. Weak acid and weak base. Okay. Let us see one more example. So next example is of ammonium cyanide. Again ammonium cyanide, break this up. Ammonium plus and cyanide negative. Hydrogen will go to the negative entity and will form hydrogen cyanide plus ammonium hydroxide. Now ammonium hydroxide is a weak base. Hydrogen cyanide is also a weak acid. So this salt ammonium cyanide is a salt obtained from weak acid and weak base. Okay. So these are the different types of the salt that we have to study in this hydrolysis of the salt. So these are the types of salt. Now we will move to our main topic, that is hydrolysis of salt. So let us first see what do we mean by the hydrolysis of salt. Okay. So let us come to the topic hydrolysis of the salt. Okay. We have seen up till now that what are the salts and how are they formed. What are the different types of salt. Now let us move to the topic hydrolysis of salt. But before understanding hydrolysis of salt, first let us understand what do we mean by hydrolysis. Now this hydro means water and lysis means breaking. So when the water breaks up means what? When it get dissociated. So when this water get dissociated and it reacts with the salt, what happens? Okay, what happens when the salt reacts with the water, or whenever the salt is combined with the water and the water get dissociated, what will be the nature, what will be the solution, what will happen actually when the hydrolysis of salt takes place, that we have to see in this concept. Okay. So up till now we have seen that whenever we consider we know that Kw, the value of Kw, that is ionic product of water, is equals to H plus into OH minus ion concentration. And also we have seen that this H plus ion concentration into OH minus ion concentration is always equals to 1 into 10 raised to the power minus 14 at 298 Kelvin. ये हम लोगों ने देखा था कि ये जो Kw की वैल्यू है, ये हमेशा कितनी आती है? 10 raised to the power minus 14. मतलब कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, कितने एसिड है कितने बेस है, we don't know. But if we consider the product at 298 Kelvin for the water, then H plus ion concentration into OH minus ion concentration is always equals to 10 raised to the power minus 14. ये हम लोगों ने देखा था. अब इसमें से क्या हो जाएगा कि if the concentration of H plus ion is equal to the concentration of OH minus ions, तो जो सोल्यूशन है, जितने उसमें H प्लस आयंस है उतने ही अगर OH माइनस आयंस है, तब सोल्यूशन क्या बन जाता है? न्यूट्रल. तब सोल्यूशन क्या बन जाता है? न्यूट्रल. अब ये जो H प्लस और OH माइनस, ये तो हम लोगों ने वाटर के लिए स्टडी कर दिया. ठीक है, सिर्फ मैंने वाटर का ऑटो आयनाइजेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. और ऑटो आयनाइजेशन हमने देखा था कि वाटर जब अपने आप से रिएक्ट होता है तो वो अपने आप से डिसोसिएट होता है, कुछ आयंस फॉर्म करता है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज ऑलवेज इक्वल टू OH माइनस आयंस. और इसीलिए जो हमारा वाटर है वो कैसे नेचर का है? न्यूट्रल. ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ऑटो आयनाइजेशन में देखा था. बट अब हमें क्या करना है? इसी हाइड्रोलिसिस को किसके साथ पढ़ना है? सॉल्ट के साथ. ठीक है. सो अगर मैं किसी सॉल्ट के साथ ये वाटर को रिएक्ट करती हूँ, मीन्स द एक्वियस सॉल्यूशन अगर मैं किसी सॉल्ट का बनाती हूँ, तो ये जो सॉल्ट है ये आयनाइज हो जाएगा. सॉल्ट, वी नो दैट सॉल्ट गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड.
जो भी सॉल्ट हम पढ़ेंगे दैट हैज अ 100% डिसोसिएशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब ये जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये कुछ पॉजिटिव आयंस बनाएगा, मतलब कैटायन बनाएगा और एनायंस बनाएगा। अब ये जो कैटायंस और एनायंस बनेंगे ये अगर इस वाटर के H+ और OH- आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, तब ये H+ और OH- आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज भी हो सकती है या चेंज नहीं भी हो सकती है। अब अगर ये चेंज होती है, अगर H+ आयंस कंज्यूम हो गए, ठीक है, H+ आयंस कंज्यूम हो गए और OH- कंज्यूम नहीं हुए, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा OH- आयंस के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और इफ अगर यहाँ पर OH कंबाइन हो गया और H+ रिएक्ट नहीं हुए, सिर्फ OH- रिएक्ट हो गए कैटायंस के साथ और H+ ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया या ये एनायन ने इनको अट्रैक्ट ही नहीं किया, ठीक है, कोई उनमें रिएक्शन नहीं हुई, तब क्या हो जाएगा कि OH- आयंस तो कंज्यूम हो जाएंगे लेकिन H+ आयंस ऐसे ही बचे रहेंगे, मतलब H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा और OH- आयंस कुछ यूज हो गया इसलिए OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब अगर सोल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट विल बी एसिडिक, यस। एंड और ये तो हमको पता ही है कि अगर दोनों सेम है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो सोल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, न्यूट्रल, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इट विल बी न्यूट्रल विथ pH 7, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब हमको इसको कहाँ अप्लाई करना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ते वक्त अप्लाई करना है। अब ये जो हम लोगों ने 4 टाइप्स के डिफरेंट सॉल्ट्स देखे अभी, तो ये जो 4 टाइप्स के डिफरेंट सॉल्ट्स देखे उनमें हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा, कौन रिएक्ट होगा, एसिड रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा, क्या क्या एक्चुअली होगा यहाँ पर, ये हमको इस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में देखना है। और रिएक्ट होने के बाद जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, दैट सोल्यूशन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट सोल्यूशन, वेदर इट विल बी बेसिक, इट विल बी एसिडिक और इट विल बी न्यूट्रल, ये हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। तो लेट अस मूव टू द hydrolysis of the first type of the salt. First type is the salt of strong acid and strong base. Okay, so in order to understand this, let us take one example of strong acid and strong base, that is NaCl. ठीक है, NaCl को हम लेकर हाइड्रोलिसिस स्टडी करेंगे। सिंपल है ये बहुत। अब ये जो NaCl है, हमें पता है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग एक सॉल्ट है एंड वी नो दैट द सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। जो भी सॉल्ट रहते हैं वो 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है मतलब क्या है कि अगर मैं 5 मॉलिक्यूल्स NaCl के डाल रही हूँ तो ये 5 Na+ और 5 Cl- आयंस में डिसोसिएट होते हैं, मतलब यहाँ पे 100% डिसोसिएशन सॉल्ट का होगा। कोई भी सॉल्ट हो, फिर वो चारों टाइप्स जो हमने देखे उसमें से कोई भी टाइप का सॉल्ट हो, सभी में डिसोसिएशन कैसा रहेगा, 100% रहेगा। So NaCl will get dissociated as Na+ and Cl-। अब हमें इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया। अब हाइड्रोलिसिस पढ़ना है मतलब क्या करना है, वी हैव टू रिएक्ट इट विथ वाटर, हमको इसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है। अब वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हम क्या सोचेंगे कि ये है हमारा Na+, ये है हमारा Cl- और वाटर हमारा ब्रेक हो जाता है H+ और OH- आयंस में। तो ये जो रिएक्शन है वो इस तरह की आनी चाहिए, ये पॉजिटिव निगेटिव के पास चला गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव के पास, मतलब हमारे पास बन जाना चाहिए HCl और NaOH, इस तरह का हमारा आ जाना चाहिए। यस, ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे इस तरह से बनने चाहिए। लेकिन अब ये जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना, ये क्या करेगा, इट विल नॉट रिमेन एज इट इज। ये जो हमारा रिएक्शन हुई, अब इसमें वाटर भी है कुछ, क्योंकि पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स तो आयनाइज होंगे नहीं, तो ये अब हमारे पास HCl है सोल्यूशन में, NaOH बन गया सपोज, और वाटर। अब ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, इनकी एक मिनट, इनकी एक बार और से रिएक्शन हो जाएगी। कैसे रिएक्शन होगी, अब यहाँ पर दिस विल गेट डिसोसिएटेड इनटू H+ प्लस Cl- प्लस Na+ प्लस OH-। ये हमेशा वाटर में इसी फॉर्म में रहेंगे। क्यों इस तरह से रहेंगे,
क्योंकि जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl and NaOH are the strong electrolyte because this is a strong base and strong acid, and we have seen in the first video that strong electrolytes are those which get completely ionized. So since these are the strong electrolytes, they will get completely ionized, मतलब वो पूरी तरह से ions formation करेंगे और यहाँ पर हमारा रिएक्शन इस टाइप का हो जाएगा. नाउ दिस H प्लस एंड वाटर विल रिएक्ट टुगेदर, इसलिए मैं इसको H3O प्लस भी लिख सकती हूँ. ठीक है. तो अब अगर मैं ये रिएक्शन को स्टडी करती हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन मैं अगर देखती हूँ तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर, जिस रिएक्टेंट साइड, अब हमको क्या देखना है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का और OH माइनस आयंस का वो डिस्टर्ब हुआ या नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा दैट वेदर the solution is acidic, basic और neutral. तो अब यहाँ पर क्या है, एक H प्लस आयंस, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जो है ये कैसे बन जाएगा, H3O प्लस को, चलो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं H प्लस, और यहाँ पर मेरा हो गया वाटर. ठीक है. अब ये जो वाटर है, ये वाटर में का क्या है, किस तरह से वाटर डिसोसिएट हुआ है, H प्लस और OH माइनस. अब ये OH माइनस इस H प्लस को अट्रैक्ट कर लेता है अगर, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, H3O प्लस. ठीक है. फिर मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये मेरी रिएक्शन हो गई. ठीक है. अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं. अगर मैं नंबर ऑफ आयंस जो भी यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक H प्लस, यहाँ पर एक H प्लस हो गया, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस, एक Na प्लस, एक Na प्लस, एक OH माइनस, एक OH माइनस, और ये जो वाटर था ये कैटायनिक फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है. मतलब टोटल जो है वाटर भी वही सेम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड द एनायंस आर द सेम. यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, मतलब जितने H प्लस आयंस थे अभी उतने ही हमारे पास OH माइनस आयंस present है. There has been no disturbance in the concentration of H plus and OH minus ions. Therefore, the solution will be neutral. Solution कैसा रहेगा, neutral. और हम कह सकते हैं कि the salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. इनका हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो वाटर के साथ रिएक्ट हुए ही नहीं. जब तक रिएक्शन होगी नहीं तब तक हम उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोल सकते. तो salt of strong acid and strong base do not undergo hydrolysis. Why? Because both are strong electrolytes and the total concentration of H plus and OH minus ions in the solution does not disturb and it remains the same. Therefore, the solution is neutral and the salt has not undergone through the hydrolysis. ठीक है. अब हम देखते हैं second type. Okay, so now let us study the hydrolysis for the second type of the salt. Second type of the salt is salt of strong acid and weak base. जहाँ पर acid strong है और base weak है, इस type का जो salt बना हुआ है उसका हम hydrolysis पढ़ेंगे. ठीक है. एक example देख लेते हैं उसका, CuSO4. CuSO4 is a salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH twice. ठीक है. ये किससे बना हुआ है, कौन सा एसिड से बना हुआ है, H2SO4, और सॉल्ट बेस है हमारा CuOH ट्वाइस, इससे बना हुआ है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ना है हमें. तो क्या करना है, सबसे पहले वी नो दैट दिस इज अ सॉल्ट. ये सॉल्ट है और सॉल्ट हमेशा 100% डिसोसिएट होता है. मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस. जैसे ही हमने इसको एक्वस सोल्यूशन में मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आयंस में कन्वर्ट होने के बाद इसके आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि H प्लस और OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर Cu2 प्लस और H2SO4 है. हमें पता है कि अगर मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो जनरली क्या होगा, H प्लस आयंस SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और क्या बना सकते हैं, H2SO4 बना सकते हैं, और OH माइनस Cu2 प्लस के पास जाएंगे और CuOH ट्वाइस बनाएंगे. ऐसा होना चाहिए. एक्चुअल हम ऐसा सोचते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव रिएक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव रिएक्ट हो जाएंगे और ये बनेगा. लेकिन इनमें से ये रिएक्ट
नहीं करेगा, मतलब SO4 जो है वो H+ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। Why? बिकॉज अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये क्या बनेगा, H2SO4, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हमेशा आयनिक फॉर्म में रहता है, तो उसे मॉलिक्यूल बनना नहीं है, उसे पूरी तरह से आयंस फॉर्म में ही रहना है जब वो वाटर में रहता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग लोगों की कैपेसिटी क्या रहती है, टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग लोगों की, हमारा जैसा नेचर है हम वैसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे किसी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी जो है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला। एक बार वो आयनाइज हो गया तो वो वापस से मॉलिक्यूल में बनना चाहेगा क्या? नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी वापस नहीं आएगा, मतलब एक बार ये आयनाइज हो गया तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस नहीं आएगा, मतलब SO4 तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है ये बेचारा क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, उसमें से कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं और कुछ अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही रहते हैं। तो अब ये जो Cu2+ है इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। हमने क्या बोला था, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कि अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो 10 में से सिर्फ 2 ही डिसोसिएट होंगे। अब ये जो 2 बेचारे डिसोसिएट हो गए वो अकेला अकेला फील करेंगे, यस। तो ये क्या सोचेंगे कि काश हम भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहते, कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो होते। तो अब ये अपने आप को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो अब सिंस इन लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो ये क्या करेंगे, OH- को अपनी तरफ खींचकर अपने आप को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जितने भी यहाँ पे OH मिलते हैं उनको उतने वो कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे CuOH ट्वाइस, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस रिएक्शन में SO4 तो रिएक्ट नहीं होगा बट Cu2+ रिएक्ट होगा। मतलब Cu2+ क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल में से OH- आयंस लेके CuOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, कन्वर्ट होने के बाद इसने OH- तो ले लिया, अब यहाँ पे H+ भी था और OH भी था, यहाँ पे 2+ है तो मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2H+ हो जाएंगे और 2OH-। अब ये 2+ ने क्या किया, ये 2OH- को अट्रैक्ट कर लिया और CuOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो गया। यस, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। लेकिन ये जो 2H+ है इनको तो H2SO4 लेने वाला नहीं है, इनको SO4 लेने वाला नहीं है, तो ये क्या होंगे, 2H+ फॉर्म में ही सोल्यूशन में रहेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये H+ फॉर्म में रहेंगे और OH- कंज्यूम हो गए, मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ और OH- आयंस का ये क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया, क्योंकि OH- तो चले गए और H+ आयंस को अकेला छोड़ दिया। तो अब सिंस इन दिस सॉल्यूशन देयर आर मोर नंबर ऑफ H+ आयंस, यहाँ के ज्यादा नंबर है H+ आयंस के, तो ये H+ आयंस, since in this case now the concentration of H+ ions is greater than OH- ions, therefore solution का नेचर क्या बन जाएगा, yes, solution का नेचर बन जाएगा एसिडिक। ठीक है, समझ में आया, मतलब salt of strong acid and weak base forms an acidic solution when undergoes the hydrolysis. Okay, समझ में आया, बहुत सिंपल था ना। Now, so अब हम next move to the थर्ड टाइप ऑफ द सॉल्ट, दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल है बहुत, अब समझ में आ गया है सभी को कि किस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया था सपोज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब ये अगेन दिस इज अ सॉल्ट, ओके, और सॉल्ट क्या होता है, 100% डिसोसिएट, मतलब 5 मॉलिक्यूल अगर सोडियम एसीटेट के हैं तो 5 मॉलिक्यूल एसीटेट आयंस के बनेंगे, 5 आयंस एसीटेट के बनेंगे और 5 आयंस सोडियम के बनेंगे। मतलब दिस विल गेट डिसोसिएटेड इनटू CH3COO- एंड Na+। ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, अब ये तो आयंस में कन्वर्ट हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया। अब ये आयंस जब वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट होंगे
ये H प्लस आयन से रिएक्ट करेंगे या OH माइनस आयन से रिएक्ट करेंगे, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर Na अगर OH को अट्रैक्ट करता है तो क्या बनाएगा, NaOH। और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने अभी बताया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आप को किसी के लिए भी चेंज नहीं करते। एक बार वो आयंस में कन्वर्ट हो गए तो वो हो गए, उसके बाद वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वापस आएंगे क्या, नहीं। मतलब ये जो NaOH है, मतलब जो Na+ है, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये NaOH बनाने वाला नहीं है, ये हमेशा इसी फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये बेचारा है हमारा वीक एसिड और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कुछ प्रमाण में डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कि अगर 20 मॉलिक्यूल्स है तो 20 में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, और वो 2 मॉलिक्यूल्स अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हम अपने आप को वापस से मॉलिक्यूलर स्टेट में लेकर जाएं। तो वापस से मॉलिक्यूलर स्टेट में, मतलब कि वापस से अपना स्टेट लाने के लिए CH3COOH उनका मॉलिक्यूलर स्टेट है। तो अब इस मॉलिक्यूलर स्टेट में आने के लिए क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करेंगे मतलब they will form a bond with this hydrogen. Means they are going to accept this hydrogen plus ions and will form acetic acid. तो अब अगर ये वाटर में जिस तरह से हमने ले लिया CH3COO-, ये क्या करेंगे, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो they are going to take the proton from this water and will get convert into an acid and OH- will remain as it is. और ये OH- इस Na+ के पास, Na+ इसको एक्सेप्ट करके कोई फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नहीं करेगा। व्हाई, क्योंकि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो बनेगा वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहते हैं। मतलब फिर से वो Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूलर स्टेट नहीं बनेगा। तो आपका जो सोल्यूशन है उसमें क्या रहेंगे, आप एसिटिक एसिड एंड OH-। तो फिर से OH- और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन H+ के पास चले गए और OH- आयन एज इट इज रह गए। मतलब इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा। या अदर वर्ड्स में हम बोले कि यहाँ पर OH- आयन ज्यादा रहेंगे और H+ आयन कम रहेंगे। और सिंस OH- आयन ज्यादा है तो OH- आयन जो डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो इन दिस केस दिस सोल्यूशन विल फॉर्म द बेसिक नेचर। इसका सोल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। ओके, क्योंकि यहाँ पर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इन द फोर्थ टाइप, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। जिसमें आ जाते हैं अभी फोर्थ टाइप पे, टाइप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इन वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो अब हमारा सॉल्ट हो गया वीक एसिड एंड वीक बेस वाला। सपोज मैंने एक सॉल्ट ले लिया, सपोज ये सॉल्ट है मेरा BA। ठीक है, ये BA सॉल्ट किससे बना होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एसिड ले लिया होगा BOH और HA एसिड एंड बेसिस BOH। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक सिंपल सा सपोज ले लिया है कि ये सॉल्ट है। सॉल्ट का नाम क्या दे दिया, BA। BA। नाउ सिंस दिस इज अ सॉल्ट, इट विल गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। इसका डिसोसिएशन कंप्लीट रहेगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये B+ और A-। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा B+ और A- में। नाउ वी हैव टू स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करना होगा। सो अगर अब ये सॉल्ट BA वाटर के साथ रिएक्ट होता है, BA रिएक्ट विथ वाटर, वाटर मतलब H+ एंड OH- आयंस के साथ रिएक्ट होएगा, तो ये क्या बनाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
यहाँ पे B is getting converted into positive. Positive will go towards negative. So BOH plus H positive, A negative. So plus HA. ठीक है, ये बनाएगा. अब this is also a weak base और ये है weak acid. ठीक है, इस तरह से हमने अब तक देखा कि कोई भी जो हमने सॉल्ट लिया वो वाटर के साथ रिएक्ट होके इस तरह से रिएक्शन दिखाएगा. अब लास्ट इसमें हमने क्या देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, दे डू नॉट एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन और द OH माइनस आयन. ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों भी वीक है, वीक एसिड और वीक बेस. मतलब दोनों की जो कैपेसिटी है, दे आर बोथ कैन गेट कन्वर्ट इनटू इट्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म. अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह सकते हैं, वो मॉलिक्यूल में रह सकते हैं. तो इसकी भी टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की और इसकी टेंडेंसी OH माइनस आयन एक्सेप्ट करने की. तो इस तरह से हमारा वीक एसिड और वीक बेस बन सकता है. बट अब ये जो सोल्यूशन बनेगा, जो भी ये जो सोल्यूशन बनेगा, अब इसका नेचर क्या रहेगा. यहाँ पे तो फिर से एसिड और बेस बन गया. सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस. ये जो सोल्यूशन हमारा बना वो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा. ये सब हम कैसे पता करेंगे. दिस कैन बी कंसिडर्ड बाय कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. अब ये दोनों वैल्यूज डिसाइड करेगी कि रिएक्शन एसिडिक रहेगी, बेसिक रहेगी या न्यूट्रल रहेगी. अगर Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का ज्यादा है तो ये रिएक्शन Ka will be greater than Kb बन जाएगी and in that case it will be acidic. और अगर Ka is less than Kb means Kb is greater than Ka, then the reaction will show the basic nature. And if both are same, Ka is equals to Kb, in that case the reaction will be neutral. तो अब ये जो चीजें हैं ये किस तरह से, Ka जब ज्यादा रहेगा तो एसिडिक कैसे बनेगा, Ka जब कम रहेगा तो बेसिक कैसे हो जाएगी, Ka जब इक्वल बन जाएगा तब ये न्यूट्रल कैसे हो जाएगा. ये सब हम चीजें देखेंगे बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स लेके ये समझने की कोशिश करते हैं. सो दैट इट विल बी इजी. मतलब सिर्फ एक सिंपल चीज क्या बोलनी है कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस undergoes hydrolysis and the nature of the solution depend upon their value of dissociation constant. अब ये जो dissociation constant है, जो भी एसिड और बेस आपने लेके सॉल्ट बनाया है उसकी dissociation constant की वैल्यू डिसाइड करेगी कि हाइड्रोलिसिस होने पर सोल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, सो हम अब एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको इजीली ऐसे समझ में आ जाएगा. Okay then. Now let us move to the first condition. तो हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. अब इसमें हम लोगों ने देखा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, Ka और Kb की वैल्यू के ऊपर. तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि जब Ka की वैल्यू ज्यादा है Kb से, इस तरह का वीक एसिड है और इस तरह का वीक बेस है जिसमें Ka की वैल्यू ज्यादा है as compared to the weak base. In that case, how the hydrolysis will take place. Okay, so let us take an example of such type. Let NH4F. ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने. ठीक है, अब ये सॉल्ट जो है NH4F ये किससे बना हुआ है, NH4OH बेस एंड HF एसिड. ओके, तो ये जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, HF एसिड. और HF एसिड की जो Ka 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴. ये होगी हमारी Ka की वैल्यू. नाउ इसमें जो बेस बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है, NH4. ओके, सो प्लस NH4OH से बना हुआ है ये, और जिसकी Kb की वैल्यू है, Kb वैल्यू इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵. 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵. ओके, सो इस टाइप का सॉल्ट है. ठीक है, सॉल्ट कौन सा हो गया, NH4F, जो कि बना हुआ किससे है, वीक एसिड एंड वीक बेस से. HF की वैल्यू हो गई Ka 7.2 इंटू 10⁻⁴ एंड NH4OH इज Kb, that is 1.8 इंटू 10⁻⁵.
ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो Ka और Kb की वैल्यू है वो क्या डिसाइड करती है, स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। ओके, स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। Ka हम लोगों ने डिराइव किया था, Ka इज अल्फा स्क्वायर सी एंड Kb इज ऑल्सो अल्फा स्क्वायर सी। मतलब ये दोनों को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के आंसर्स दोनों इक्वेट कैसे हुए हैं, अल्फा स्क्वायर सी एंड अल्फा स्क्वायर सी। तो मतलब दीज टू कैन बी कंपेयर्ड। Now in this case here Ka is 7.2 into 10 raised to the power minus 4 and Kb is 1.8 into 10 raised to the power minus 5। ठीक है, तो अब ये दोनों की वैल्यूज देखकर आपको क्या लगता है कि विच इज स्ट्रॉन्ग? ये दोनों में, दोनों वीक एसिड और वीक बेस है, लेकिन इन दोनों में से इसकी Ka की वैल्यू ज्यादा बड़ी है और इसकी छोटी है। मतलब अगर ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो दिस इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन दिस, ये वीकर हो गया। दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, दीज बोथ आर वीक एसिड एंड वीक बेस। बट अगर मैं दोनों की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कंपेयर करती हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि सिंस दिस इज हैविंग अ हायर Ka वैल्यू 7.2 into 10 raised to the power minus 4 which is greater than 1.8 into 10 raised to the power minus 5 means this HF is little bit stronger than NH4OH। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका डिसोसिएशन। अब हमको पता है दिस NH4F will dissociate since it is a salt, it will dissociate completely into NH4 plus and F minus। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब H plus और OH minus। अब हमने अपने लास्ट तक देखा कि इसमें कौन सा H प्लस लेगा और कौन OH माइनस लेगा। ठीक है, अब ये HF बनाएगा और ये NH4OH बनाएगा। दोनों भी वीक है तो दोनों की टेंडेंसी है बनाने की। ये भी HF के साथ अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि वीक है, ये भी वीक है इसलिए ये भी OH अट्रैक्ट करके NH4OH मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट पे दोनों भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बट इन दोनों में से कौन ज्यादा कन्वर्ट होगा? जो ज्यादा वीक होगा। मतलब यहाँ पर NH4OH ज्यादा वीक है तो ये जो है NH4OH वो ज्यादा NH4OH बनाएगा एज कंपेयर टू HF। मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, 10 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, ठीक है, और यहाँ पर H प्लस के भी सपोज मेरे पास 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो अब ऐसा अगर होने के बाद क्या होगा कि ये जो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स है वो NH4OH के साथ कंबाइन होके, सिंस ये वीक है तो ज्यादा से ज्यादा अनआयनाइज्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, इसलिए ये पूरे कंबाइन होके 10 के 10 NH4OH बना लिया इन लोगों ने। लेकिन ये थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी दिखाएगा, ये अपना स्ट्रॉन्ग जो है अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो स्ट्रेंथ दिखाने के कारण वो क्या बोलेगा कि मैं तो अब एक बार F माइनस में कन्वर्ट हो गया तो मैं कन्वर्ट होने वाला नहीं हूँ, मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट होने वाला नहीं हूँ। लेकिन पूरी तरह से ऐसा बोल भी नहीं सकता वो, क्योंकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या? नहीं, वो है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया क्योंकि वो NH4 के कंपैरिजन में आ गया। तो इसमें से अब ये जो 10 F माइनस है, इसमें से 10 में से क्या होगा, कुछ 8 ही रहेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे HF में, बाकी के 2 अपनी थाट में ही रहेंगे कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूं इससे, तो मैं अनआयनाइज्ड या मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने वाला। मतलब इसमें से क्या हो गया कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स NH4 के बन गए और कुछ ही मॉलिक्यूल्स HF के बन गए। अब ज्यादा मॉलिक्यूल बन गया मतलब क्या हो गया कि ज्यादा OH माइनस आयंस कंज्यूम हो गए। यहाँ पे जो NH4 H प्लस और OH माइनस आयंस थे हमारे वाटर के, उसमें से कुछ सपोज अगर 20 थे तो 20 में से 10 OH माइनस आयंस तो चले गए और 8 H प्लस आयंस चले गए। मतलब अब बचे कितने, यहाँ पर 10 बचे OH माइनस और यहाँ 12 बच गए H प्लस आयंस। यस, तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया, H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स इन दिस केस the concentration of H plus ions is greater than that of the OH minus ions, और इसीलिए जो सोल्यूशन बनेगा, कौन सा सोल्यूशन, aqueous solution of salt of weak acid and weak base, it will be of कौन सा नेचर रहेगा उसका, एसिडिक। क्यों एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर H plus ions का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। आया समझ में?
सो अब हम टाइप 4 का जो है उसके सेकेंड टाइप पे आते हैं, मतलब जब हमारी Ka की वैल्यू स्मॉलर है Kb से। इस टाइप के एग्जाम्पल को अब हम देखेंगे वेयर Ka इज स्मॉलर देन Kb, मतलब सेकेंड कंडीशन हमारी। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NH4Cn। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया NH4Cn। ओके, अब ये जो NH4Cn है ये किससे बना हुआ है? HCN। ठीक है, HCN से बना हुआ है, मतलब एसिड कौन सा है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के लिए Ka की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो गई इसकी Ka की वैल्यू। और दूसरा क्या बना होगा? HCN और NH4OH, मतलब बेस है इसमें हमारा NH4OH। और अभी हमने देखी थी NH4OH के लिए Kb की वैल्यू हमारी 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ओके, मतलब दिस इज अगेन अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दिस इज ऑल्सो अ वीक एसिड, दिस इज ऑल्सो वीक बेस। तो ये दोनों की वीक एसिड और वीक बेस हो गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? Kb की वैल्यू ज्यादा है Ka से, मतलब Kb की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और Ka की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻10, मतलब ये बहुत छोटी है इससे। तो अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं HCN और NH4OH, तो क्या रहेगा? कौन स्ट्रॉन्ग है ज्यादा और कौन वीक है? यस, जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इन दिस केस अगर ये दोनों भी वीक एसिड और वीक बेस है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिड, मतलब बेस स्ट्रॉन्गर है एसिड से। अब again we'll do the same thing. We know that the salt dissociates completely. ये dissociate हो जाएगा NH4 plus and Cn minus. Okay, now when we are going to react it with the water, means H plus and OH minus ions के साथ जब हम water साथ react करेंगे तब क्या होगा? कौन ज्यादा react होगा और कौन कम react होगा? जो weak होगा वो ज्यादा react करेगा, जो strong होगा वो कम react करेगा। तो अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? Kb की वैल्यू ज्यादा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, मतलब NH4OH कम प्रमाण में बनेंगे एंड HCN ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब HCN के यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स और NH4OH के कम मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर HCN के ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस आयंस यूज हुआ है और कम क्वांटिटी में OH माइनस आयंस यूज हुआ है। ज्यादा यूज हुआ है मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में अब कम हो गया और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में बढ़ गया। वाटर में नहीं, सोल्यूशन में बढ़ गया। तो सिंस इन दिस सोल्यूशन द OH minus ion concentration is greater than H plus ion concentration, therefore the solution will be basic in nature. इसीलिए solution. Okay, so third type, when Ka is equals to Kb. ये स्टडी करेंगे हम थर्ड टाइप, when Ka is equals to Kb. We are studying the hydrolysis of salt of weak acid and weak base, और उसमें अब हमारा थर्ड टाइप है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस बोथ आर इक्वल। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमोनियम एसिटेट। ठीक है, अमोनियम एसिटेट। ये अमोनियम एसिटेट कौन से एसिड से बना हुआ है? एसिटिक एसिड, जिसकी Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड दूसरा बना हुआ है बेस है हमारा यहाँ पर NH4OH, और जिसके लिए Kb की वैल्यू है अगेन 1.8 इंटू 10⁻⁻5। मतलब दोनों के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है? सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सॉल्ट है अमोनियम एसिटेट। ठीक है, सिंस इट इज अ सॉल्ट इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिटेट आयंस और अमोनियम आयंस में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया ये एसिटेट आयंस और अमोनियम आयंस में। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है हमें? वेदर इट रिएक्ट्स विथ द वाटर मॉलिक्यूल, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसको H प्लस और OH माइनस आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? अब हमने अब तक देखा कि जो स्ट्रॉन्गर रहेगा वो कम अनआयनाइज्ड फॉर्म, मतलब कम प्रमाण में रिएक्ट होगा, और जो वीक रहेगा दैट विल रिएक्ट
टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि दोनों ही वीक एसिड वीक बेस है और ऊपर से दोनों की एक Kb की जो वैल्यू है सेम है, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है, ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही कोई दूसरा वीक है, दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है। एंड सिंस बोथ आर वीक एसिड एंड वीक बेस दे बोथ आर गोइंग टू रिएक्ट विद H प्लस एंड OH माइनस, और सिंस दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है मतलब जो रिएक्शन होगा सेम क्वांटिटी में होगा। अगर यहाँ के 5 H प्लस आयंस इसने लिए हैं तो ये भी अपने 5 OH माइनस यहाँ पर लेगा। मतलब ऑल टुगेदर व्हाट आई वांट टू से दैट दिस H प्लस एंड OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन विल रिमेन द सेम। क्या हो जाएगा इस केस में, जितने H प्लस आयंस ये यूज कर रहा है उतने ही OH माइनस आयंस ये भी यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम है। स्ट्रेंथ सेम कैसे पता चली हमें, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट से। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों के सेम है, इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है मतलब दोनों एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। अगर ये H प्लस आयंस ले रहा है तो ये भी अपना एक OH माइनस आयंस लेगा, और इस तरह से सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। जितने H प्लस आयंस यूज हुए हैं उतने ही OH माइनस आयंस भी यूज हुए हैं। Hence, the total number of H plus ion concentration and OH minus ion concentration will be the same, and in such case the solution will be of neutral nature, और इसीलिए solution कैसा रहेगा, neutral रहेगा। Okay, so have you understood? So we have today covered about the different types of salt, and we have seen the hydrolysis of each and every type of salt in detail. ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा देखा है। अगर आप लोगों को strong acid, strong base नहीं समझ में आ रहे, you are not able to distinguish, please do watch my previous video, क्योंकि previous video में we have already taken what are the strong acids, what are strong base, how are they formed, किस तरह से वो strong electrolyte रहते हैं, हमने उनके dissociation constants भी देखे थे। So वो आपका एक रिकैप भी हो जाएगा, और हो सके तो ये वीडियो से पहले आप एक बार और से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो फिर भी आपको अगर इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, ओके, एंड फॉर दोज हु आर स्टडीइंग इन माय क्लास ओनली दे कैन आस्क मी ऑन माय फोन, ओके। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ओके।